in the MKCL and consultant of IoT as well. Dear students, our senior colleague Dr. Hemant Deshmukh, then my colleague Mr. Pramod Buchunde is present over here, and other colleagues I'm not seeing, but I feel that they are here. So I welcome all of you for this session of Internet of Things. Yes, it was at the very start of the session, we thought that we should take some courses so that our students become aware, our faculty become aware of what is going on all over the world. Just as some 20 years back, 30 years back, computers made a revolution in a way we think, a way we act, way we play, everywhere. Computer is everywhere. Likewise, IoT, Internet of Things. The name itself suggests that it is interconnection of various systems. So in simple terms, if I just tell you what I mean IoT, we are going to make, mechanical engineers are going to make the machines talk. Our machines are the pumps, our machines are the compressors, our machines are the furnaces, our machines are the blowers, our machines are the turbines. So everywhere, our machines are our sensors. So network of all this connected with electronics embedded system with computer software make a complete IoT. Earlier, see, you had got number of products, number of parts. So these compressors, these pumps, these machines, which were installed in the factories, they had no consent with the manufacturer. But now, with the help of the internet technology, with the help of the embedded technology, with the help of the sensors, the manufacturer can get directly information about how the machine is working. What is the vibration level of the machine? What are the temperatures the machine is facing? What is the humidity therein? From this, they can just communicate the manufacture, the product where it is being supplied. They will just communicate if there is any problem within seconds. So this is astonishing. This didn't happen. You know that most of the industries work on maintenance. So if maintenance is good of machines, the production doesn't halt. But when I will know that machine is going to fail. So IoT is going to help us to know what is the condition of the machine. And the manufacturers, again I am saying the manufacturer directly will be in communication with us and will be telling, yes, this is going to be wrong and you have to take this action. And now the task is very easy and you can just solve your problems, and instead of going for the breakdown maintenance, this will be the predictive or the preventive maintenance, and hence increase, I say, the productivity of the industries. So with this, I think I have just sum up what I know, but I am very much curious to learn new things today from our consultant, our speaker of the webinar today, Ms. Meera. I hope we will feel fascinated when the webinar is over, and the webinar, I hope, will be enjoyable and truly educational to all of us. Thank you. Thank you, everybody. Over to Professor Pramod. Thank you, sir. Thank you. And you have various vast knowledge regarding mechanical engineering. Also, you keep learning. That is the biggest thing, I think, sir.
and also you motivate us to take such webinars. So thank you very much to our HOD, Dr. Praveen Podduke, sir. So dear participants, so we are eagerly awaiting towards learning the new concept, that is IoT, which is very much helpful to us because we are learning mechatronics. So it is a blend of mechanical plus electronics, and we have with us Miss Meera Musne ma'am. And I will just read out. Yes, Meera Musne ma'am, and she has done her B in computer science, and she has 12 plus years of experience in hardware and networking field as a trainer. She has also worked as a Microsoft technologies trainer also, and having a global certificate of MCSA. At present, she is working as a hardware and networking consultant in MKCL since 2018, also providing trainings for the Click IoT course, which is from MKCL, and conduct online and offline seminars on IoT at various diploma colleges in Latur. So I think this session will be wonderful. So now I request Meera ma'am to start the proceedings. Meera ma'am. Yes, sir. Yes, I am start. audible to everyone. Yes, yes. Yes, 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 ma'am. Yes, sir. sir. Yes, Please, sir. please, Ma'am. yes. Yes, Okay. ma'am. Yes, sir. Thank you, Pramod sir and Praveen sir. Praveen sir has given lot of information about IoT. He has completed 50% of my work before starting this webinar. So we will start the session now. So we will see about Click IoT course and future today. So we will see one example first. Why would you like to know IoT? आप IoT के बारे में क्यों जानना चाहते हो? एक यहाँ पे छोटा सा स्टोरी है, वो हम देखते हैं. Here is one boy whose name is Adi. He enjoys talking with Alexa. And there is one another boy who is Avi, and he has just started his college life. And when he see Alexa, he is curious about how Alexa works. कि Alexa कैसे काम करता होगा, कौन सा टेक्नोलॉजी उसमें यूज किया होगा, इस बारे में ये बहुत क्यूरियस है. वो जानना चाहता है कि Alexa कैसे वर्क करता है. So he thought, let's search on Google. And he searched about how Alexa works. And then he got the answer, that is, oh, it's an example of IoT. IoT technology has implemented in that device, and that's why it is working over commands. So he thought, where I can learn IoT, means अगर मुझे अभी IoT सीखना है तो मैं कहाँ से सीख सकता हूँ. So he got one solution, that is, we have one course whose name is Click IoT. It's MKCL's course, Internet of Things. And in this course, you can see what is IoT, what are career opportunities, which software we use to upload the programs to microcontroller IC, then various advanced certifications, then MKCL's Click certification, why we want to know about IoT, learning methodologies, and various things. Means you will get all these things in our course. So we will see one video. Madam, sound is not coming off video.
One of the example of Internet of Things, that is home automation. तो यहाँ पे आप आपके घर में अगर IoT टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करते हो तो इस तरह का होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट या फिर एप्लीकेशन आप आपके घर में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो. So why IoT? So nowadays IoT is emerging technology. Emerging technology है, advanced technology है, हर फील्ड में अभी IoT इम्प्लीमेंट हो चुका है. And we want to automate everything. आज हमें हर चीज ऑटोमेटेड चाहिए. We want to control everything remotely. हर चीज हम रिमोटली कंट्रोल करना चाहते हैं. जैसे कि अभी मैं ऑफिस में बैठी हूँ, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में जो एसी है, गीजर है या फिर कोई भी अप्लायंस है, वो मुझे यहाँ से ऑन करना है या फिर ऑफ करना है या फिर मॉनिटर करना है, तो ये अगर मैंने IoT टेक्नोलॉजी मेरे घर में इम्प्लीमेंट किया है तो ये मैं कर सकती हूँ. मीन्स आई कैन कंट्रोल all the appliances remotely using IoT. If we want to see data in real time, अगर आप real time data देखना चाहते हो, then you can use IoT, Internet of Things. जैसे कि right now अगर मुझे देखना है किसी डिवाइस का या फिर किसी जगह का टेम्परेचर या फिर ह्यूमिडिटी क्या है, इट्स रियल टाइम डेटा, तो हम वो IoT के जरिए, सेंसर्स के जरिए देख सकते हैं. So these are some of the reasons. As we want to control everything remotely, we want to see data in real time, we want to automate everything. So we have to learn IoT, and it's emerging technology and it is implemented in every field. That's why we should know about IoT. We should learn IoT, and it is helpful for कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए या फिर किसके लिए ये टेक्नोलॉजी हेल्पफुल है. So साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, 12th 10th के स्टूडेंट्स, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये टेक्नोलॉजी हेल्पफुल है. अभी आप बोलोगे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए कैसे, तो स्कूल्स में देखो साइंस के एग्जीबिशंस होते हैं, तो स्कूल स्टूडेंट्स भी अभी उस एग्जीबिशन में IoT के अलग अलग प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं. देन आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, आपको फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट होता है, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को भी प्रोजेक्ट होता है, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को भी प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है. तो वेब डेवलपमेंट या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अभी ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं. अभी ज्यादातर स्टूडेंट्स IoT के प्रोजेक्ट्स रेफर कर रहे हैं, कॉलेज में सबमिट कर रहे हैं. सो दीज आर मेनी रीजंस फॉर दैट वी शुड नो IoT, and it is helpful for all. So what IoT professionals can do? So IoT professionals use latest technologies for building useful applications. They gather necessary data to generate helpful alerts, applying science technology principles in daily life application designs, automating systems using sensors and actuators, and become a freelancer. So these are many roles that an IoT professional can do. IoT एज फ्रीलांसिंग क्या होता है वो हम देखते हैं. तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्कूल स्टूडेंट्स अभी अलग अलग साइंस एग्जीबिशन में, उनके स्कूल में जो एग्जीबिशंस होते हैं उसमें अलग अलग IoT के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, वो प्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये एक स्कूल स्टूडेंट है जिसने होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट किया था यूजिंग वाईफाई मॉड्यूल, और उसने उसके स्कूल में प्रेजेंट किया था, and he was the winner in 2020 in his school at Latur. ये एक डिप्लोमा स्टूडेंट है जिसने स्मार्ट स्क्रीन का एक प्रोजेक्ट उसके कॉलेज में प्रेजेंट किया था. उसके लिए उसने हमारे यहाँ क्लिक IoT का कोर्स किया था, एंड देन ये प्रोजेक्ट उसने उसके कॉलेज में प्रोजेक्ट कंपटीशन था जिसमें उसने ये प्रेजेंट किया था, एंड शी गॉट 3rd प्राइज इन दिस प्रोजेक्ट. तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम यूजिंग IoT कर सकते हैं. एक प्रोजेक्ट मैंने डिजाइन किया है, मैं आपको दिखाती हूँ स्मार्ट स्क्रीन का. यहाँ पे देखिए स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हैं हम हैंड जेस्चर से. उस मॉनिटर को 2 सेंसर्स लगाए हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, और एक वीडियो उसमें प्ले किया है, और वो
जो वीडियो हमने प्ले किया है वो यूजिंग सेंसर्स हम उस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं, उसको फॉरवर्ड रिवर्स कर सकते हैं। सो दिस इज द स्मार्ट स्क्रीन प्रोजेक्ट। तो ये हम यूजिंग IoT कर सकते हैं। देखिए आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ IoT। And these are some of the companies hiring IoT professionals. तो ये कुछ MNCs है जो IoT प्रोफेशनल्स हायर करते हैं। किसी को अगर IoT में करियर करना है, IoT प्रोफेशनल का जॉब करना है, और IoT के जो प्रोफाइल्स होते हैं दोज आर वेरी हाई सैलरी पैकेज जॉब्स। इसमें आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा बिकॉज इट इज न्यू एंड emerging technology today. And these are some of the companies where you can get trainings before joining your job, and then you got the IoT professional profile there. And where IoT professionals work, they can work as IoT application developer, artificial intelligence researcher, IoT machine learning. So these are some advanced fields in IoT. And which key tools they use? कौन से tools वो use करते हैं? So Tinkercad is one ऑनलाइन सिमुलेटर। इसके बारे में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी। अपना ये सेशन कंप्लीट होने के बाद एक प्रैक्टिकल मैं आपको इसमें करके बताऊंगी ऑन Tinkercad सिमुलेटर। सम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वी स्टडी इन दिस कोर्स। तो IoT टेक्नोलॉजी जब हम पढ़ते हैं, IoT का कोर्स जब हम करते हैं, तो इसमें हमें क्या क्या नॉलेज मिलता है या फिर क्या क्या चीजें हम यहाँ पे सीखते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में हम सीखते हैं। ऑर्डिनो बोर्ड की स्टडी है इस कोर्स में। आपको ऑर्डिनो बोर्ड के बारे में यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ऑर्डिनो कैटेगरी में thousands ऑफ बोर्ड्स आर देयर, बट इन आवर कोर्स वी टीच ऑर्डिनो उनो बोर्ड कि ऑर्डिनो उनो बोर्ड का आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे होता है, पिन कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर IC का फंक्शन क्या होता है, उसे प्रोग्राम अपलोड कैसे करना है, एंड लाइक दैट। And Arduino IDE is one software interface through which we can upload the programs to Arduino Uno board. तो Arduino IDE के बारे में भी हम यहाँ पे सीखते हैं। अलग अलग सेंसर्स की स्टडी है इस टेक्नोलॉजी में। अल्ट्रासोनिक सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। कुछ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में आप सीख सकते हो, जैसे कि यूजिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी हाउ एन एप्लीकेशन कैन बी कंट्रोल्ड, using Wi-Fi module how you can control any application, or how you can implement Wi-Fi module in any project like this. So these are some key tools which you can learn in our course. And these are some IoT certifications. ये कुछ high या फिर एडवांस लेवल के सर्टिफिकेशंस है। यू कैन डू दिस आफ्टर आवर कोर्स। हमारा जो कोर्स है दैट इज बेसिक IoT कोर्स। इट्स 1 month ड्यूरेशन कोर्स, but we provide all the basic knowledge of IoT in that course. And after completing this course, you can join for advanced IoT certifications which are listed on your screen. So from where do I start? अगर आपको ये टेक्नोलॉजी सीखना है, IoT के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए, तो आप कहाँ से ये कर सकते हो? So MKCL has given one solution for that, that is Click IoT. It's name of our course. It's MKCL's Click IoT basic certification, and this is the syllabus. So in our Click IoT course we teach from basic, that is introduction to IoT technology. अगर कोई स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट है, या फिर आफ्टर 12th किसी ने ज्वाइन करना चाहता है, या फिर कोई ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, किसी को प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है, जैसे कि आपको मैकेनिकल ब्रांच में प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं होता है, तो अगर आपको IoT का लॉन्ग फॉर्म भी पता नहीं है, IoT टेक्नोलॉजी क्या है वो भी आप नहीं जानते, तो भी ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारा फर्स्ट मॉड्यूल ही वो है कि इंट्रोडक्शन टू IoT टेक्नोलॉजी, की IoT टेक्नोलॉजी क्या होता है, अलग अलग एग्जांपल्स यूज करके हमने उसमें वो एक्सप्लेन किया है। देन सेकंड सेशन में हम पढ़ाते हैं इंट्रोडक्शन टू ऑर्डिनो बोर्ड। तो जैसे अभी एक पिक्चर हमने देखा था ऑर्डिनो बोर्ड का, तो वो बोर्ड हम यहाँ पे सिखाते हैं कि ऑर्डिनो बोर्ड क्या होता है, उसका आर्किटेक्चर कैसे होता है, माइक्रो कंट्रोलर IC का फंक्शन क्या होता है, अलग अलग इनपुट आउटपुट पिंस के बारे में हम बताते हैं।
So this all information we provide in this second session. Then Arduino IDE is one software interface जहाँ पे हम आपको Arduino बोर्ड को प्रोग्राम कैसे अपलोड करना है इसके बारे में जानकारी देते हैं। और जैसे कि अभी मैंने बताया टिंकरकैड इज एन ऑनलाइन सिमुलेटर सॉफ्टवेयर। सो टिंकरकैड में आप अलग अलग आपके सर्किट्स जो आप बनाते हो या फिर अलग अलग एप्लीकेशंस आप जो डेवलप करना चाहते हो वो टिंकरकैड में आप टेस्ट कर सकते हो। मीन्स अगर आपके पास कंपोनेंट्स नहीं है और आप कुछ प्रोजेक्ट्स टेस्ट करके देखना चाहते हो कुछ कंपोनेंट्स उसमें यूज, तो ये सब हम वर्चुअली कर सकते हैं इन टिंकरकैड ऑनलाइन सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। एंड कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को देते हैं, जो बेसिक कंपोनेंट्स जो रिक्वायर्ड नॉलेज उनको होना चाहिए, जैसे कि ब्रेड बोर्ड क्या होता है, उस पर हम अलग अलग प्रोटोटाइप सर्किट कैसे बता सकते हो बना सकते हो। देन एलईडी क्या होता है, पीजो बजर क्या होता है, सीरियल मॉनिटर विंडो का क्या फंक्शन होता है। देन कुछ सेंसर्स की स्टडी है, जैसे कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, अल्ट्रासोनिक सेंसर है। तो ये सेंसर्स कैसे यूज कर किए जाते हैं, इनका क्या यूज होता है, इनको प्रोग्राम कैसे अपलोड करना है, इनके थ्रू एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। जैसे कि स्मार्ट स्ट्रीट का प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, जिसमें क्या होता है, स्मार्ट स्ट्रीट में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वो स्ट्रीट लाइट्स जो होते हैं वो ऑन होते हैं और ऑफ होते हैं। जैसे ही सनलाइट डिटेक्ट होता है वो लाइट्स ऑफ होते हैं, और जैसे ही सनलाइट डिटेक्ट नहीं होता है या फिर जैसे कि अंधेरा होता है वो लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। सो यूजिंग एलडीआर सेंसर ये छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट भी आप ड्यूरिंग द कोर्स परफॉर्म करके देख सकते हो। तो ऐसे अलग अलग छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट्स उस सेंसर की स्टडी के वक्त आप कर सकते हो। कुछ मोटर्स की यहाँ पे स्टडी है, जैसे कि डीसी मोटर क्या होता है, सर्वो मोटर क्या होता है, आरएफआईडी सिस्टम क्या होता है। देखो टोल नाका जो होता है वहां पे देखो अभी पूरा आपने देखा होगा ऑटोमेटेड सिस्टम करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आरएफआईडी सिस्टम या फिर आरएफआईडी टैग्स यूज किए जाते हैं, जिसके जरिए वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा उस कार को और वो ऑटोमेटिकली आगे पास हो जाएगा। देन कुछ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हम यहाँ पे सिखाते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी या फिर वाईफाई मॉड्यूल। तो ये टेक्नोलॉजीज यूज करके अलग अलग प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं ये भी आप यहाँ पे सीख सकते हो। सो ये ऑल सेशंस कंप्लीट होने के बाद, मीन्स आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ 20 आईओटी के प्रोजेक्ट्स के पीडीएफ हमने यहाँ पे दिए हैं इस कोर्स में। तो ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स अगर आप बना के देखना चाहते हो, मीन्स इफ यू वांट टू एक्सप्लोर योर आईओटी नॉलेज विच यू हैव learn in this course syllabus, you can implement that knowledge, means आप छोटे छोटे वो प्रोजेक्ट्स भी बना के देख सकते हो। So this is the syllabus of Click IoT course, and there are some real life assignments। तो ये कुछ असाइनमेंट्स है जो हम परफॉर्म करके देख सकते हैं, या फिर ये कंपलसरी असाइनमेंट्स है हमारे कोर्स में स्टूडेंट्स सबमिट करते हैं। तो इसमें से एक असाइनमेंट हम टिंकरकैड में अभी करके देखते हैं हमारे सेशन के बाद। These are 6 assignments. There are some take a challenges, means कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं आपको कि आपने जो भी टॉपिक सीखा है, जैसे कि अल्ट्रासोनिक सेंसर टॉपिक आपने सीखा है तो उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलेंगे। And this course is available in 2 languages. It's available in Marathi as well as English. तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा है, आईओटी या शब्दाचा फुल फॉर्म आहे, एंड 4 ऑप्शंस वहां पे है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से टीएसी या फिर टेकर चैलेंजेस सॉल्व करते हैं हर सेशन के बाद। विच वन इज करेक्ट, एनीबॉडी? Fourth, ma'am. Yes, Fourth. Internet of Option Things. C. Yes, yes, right. Yes, ma'am. Then लर्निंग मेथोडोलॉजी। सो ऑडियो विजुअल लर्निंग होता है, आपको आपका आईडी पासवर्ड मिलेगा जिसके थ्रू आप लॉग इन करके आपके डेली सेशंस लर्न कर सकते हो। इस तरह से आपका लर्निंग स्टार्ट होता है, एंड 1 बाय 1 आप आपका सेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट सेशन में मैंने जैसे बताया कि आईओटी क्या है, ये हमने फर्स्ट सेशन में पूरा अलग अलग एग्जांपल्स के जरिए एक्सप्लेन किया है। तो देखो एक पिक्चर है सामने आपके स्क्रीन पे, वहां पे कुछ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एटीएम मशीन है, एक कार दिखाई दे रहा है, ड्रोन है,
ठीक है, एक घर दिखाई दे रहा है. So all these objects we can connect with each other using any communication method, or we can provide internet connection to it also, and we can make them communicate with each other. जैसे कि अभी आपके सर ने भी आपको बताया कि machines can talk with each other using IoT. तो यही हम करते हैं. It's अ सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी. अलग अलग सेंसर्स हम अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, और इस तरह से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, एंड दैट कैन बी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग. वो लिविंग थिंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है. जैसे कि स्मार्ट डेयरी प्रोजेक्ट अगर है, तो स्मार्ट डेयरी में क्या किया जाता है, अलग अलग वहां पे जो एनिमल्स होते हैं, जो काउज एंड बफेलोज वहां पे होते हैं, उनको अलग अलग सेंसर्स लगाए जाते हैं, और उसके जरिए फिर एक किसी ऐप के जरिए उन सबको मॉनिटर किया जा सकता है. सो हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर creating a network of living things, that is all animals. We are connecting sensors to them, and then we can monitor to them. So different objects that can be living thing or non-living thing, we can connect in a network in IoT technology, and we can control them or we can monitor them. So this is the explanation of how IoT works. IoT कैसे काम करता है. जैसे कि होम ऑटोमेशन में आप क्या करते हो, आपके घर में जो अलग अलग अप्लायंसेस होते हैं, लाइट्स है, ट्यूब्स है, फैंस है, फ्रिज है, गीजर है, एसी है, ये सब ऑब्जेक्ट्स को आप क्या करते हो, एक नेटवर्क में कनेक्ट करते हो, और किसी ऐप के जरिए उनको ऑन ऑफ कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो. सो दिस इज द प्रोजेक्ट ऑफ होम ऑटोमेशन. तो ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं. जैसे कि स्मार्ट डस्टबिन है. स्मार्ट डस्टबिन में क्या किया जाता है, वो डस्टबिन जैसे ही फुल होगा तो उसका नोटिफिकेशन या फिर अलर्ट जाएगा, एंड देन that related person will come and collect that dust. So yeah, this is an example of smart dustbin. In smart agriculture also, various applications can be used using IoT technology. So all these are examples of IoT. आवाज आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, No, ma'am. ma'am. No, हाँ ma'am. मैम. Yes, ma'am. Okay. यस मैम. मैम आवाज नहीं आ रहा. Yes, एक ma'am. सेकंड. साठी पिझो बहुतेक वेळा आर्डिनो बोर्डचा उपयोग पुढील गोष्टींसाठी करतात. सेन्सर्स कडून डेटा घेणे, त्या डेटावर प्रोसेसिंग करून काही निर्णय घेणे, आणि त्या निर्णयानुसार ऍक्च्युएटर्स कंट्रोल करणे. हे ऍक्च्युएटर्स बऱ्याच वेळा इंडिकेशनचे काम करतात. इंडिकेटर्स दोन प्रकारचे असतात. एक ऑडिओ इंडिकेटर्स, जसे बझर, स्पीकर्स इत्यादी, आणि दोन व्हिज्युअल इंडिकेटर्स, जसे लेड बार, LCD, 7 सेगमेंट डिस्प्ले इत्यादी. आजच्या पाठात आपण पिझो बझर हे ऑडिओ इंडिकेटर शिकणार आहोत. पिझो बझर हे एक इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस आहे. याचा उपयोग करून आपण एका विशिष्ट प्रकारचा आवाज
किंवा वेगवेगळे म्युझिक टोन्स तयार करू शकतो. त्यामुळे बऱ्याचशा IoT ऍप्लिकेशन्स मध्ये हा बझर ऑडिओ इंडिकेटर म्हणून वापरतात. त्यातील काही ऍप्लिकेशन्स बघूया. पहिले ऍप्लिकेशन आहे व्हेइकल्स इंडिकेटर्स. कुठल्याही वाहनामध्ये आपल्याला कुठल्या दिशेला वळायचे आहे हे आपल्या मागील वाहन चालकांना कळावे म्हणून आपण इंडिकेटर देतो. जोपर्यंत वाहनाचे इंडिकेटर चालू आहे तोपर्यंत एक विशिष्ट आवाज ऐकू येतो. हा आवाज निर्माण करण्यासाठी पिझो बझरचा वापर केलेला असतो. दुसरे ऍप्लिकेशन आहे फायर अलार्म सिस्टम. या सिस्टम मध्ये फायर, स्मोक, कार्बन मोनॉक्साईड किंवा आणखी कुठली इमर्जन्सी डिटेक्ट झाली तर बझर वाजतो आणि सर्वांना धोक्याची सूचना दिली जाते. तिसरे ऍप्लिकेशन आहे वॉशिंग मशीन. वॉशिंग मशीन मध्ये काही एरर आल्यास किंवा मशीनचे काम पूर्ण झाल्यास एक विशिष्ट प्रकारचा बीप ऐकू येतो. हा आवाज निर्माण करण्यासाठी पिझो बझरचा वापर केलेला असतो. अशा या महत्वाच्या ऍक्च्युएटरचा तपशीलवार अभ्यास करण्यापूर्वी आपण ह्या पाठाची उद्दिष्टे बघूया. एक पिझो बझर कसे काम करतो ते अभ्यासणे. 2 किट वापरून पिझो बझर आर्डिनो बोर्डला जोडणे. 3 ब्रेड बोर्ड वापरून पिझो बझर आर्डिनो बोर्डला जोडणे. 4 पिझो बझर मधून एकाच प्रकारचा आवाज तयार करण्यासाठी प्रोग्राम लिहिणे. आणि 5 पिझो बझर मधून संगीताचे सप्तसूर तयार करण्यासाठी प्रोग्राम लिहिणे. तो ये कोर्स में वीडियो जो अभी आपको मैंने दिखाया कि एक टॉपिक है हमारे कोर्स में पिज़ो बजर. तो पिज़ो बजर कैसे वर्क करता है, उसको कैसे कनेक्ट करना है, उसको कैसे प्रोग्राम करना है, वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ये सब इस सेशन में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है. और कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप ऑन डिमांड ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो, जिसके बाद आपको IoT का सर्टिफिकेट मिलेगा. And in final exam, you will get some objective questions like this. And this type of certificate you will get when you will complete the course and exam. And these are some course details. The course duration is 1 month. Medium of learning मराठी है और अभी इंग्लिश में भी ये लॉन्च हुआ है. स्टडी मटेरियल इसमें नहीं मिलेगा आपको, ई लर्निंग कंटेंट के ही फॉर्म में है. सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा MKCL का सर्टिफिकेट. एंड द कोर्स फीस इज 2000 रुपीज. सो एक अच्छा कोर्स है जो आप ज्वाइन करके IoT के बारे में बेसिक नॉलेज ले सकते हो और कुछ प्रोजेक्ट्स भी आप उसमें इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो. कुछ सेंसर्स की स्टडी आप कर सकते हो. कुछ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जैसे कि ब्लूटूथ एंड वाईफाई टेक्नोलॉजीज के जरिए कैसे किसी एप्लीकेशन को कंट्रोल करना है या फिर यूज करना है वो आप यहाँ पे सीख सकते हो. एंड दीज आर सम फ्यूचर स्कोप, दैट इज आपको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगे. कुछ एडवांस सर्टिफिकेशन करके आप कुछ पर्सनल यूजफुल प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो, कुछ सोशली यूजफुल प्रोजेक्ट्स भी आप बना सकते हो. सो इन दिस वे यू कैन इम्प्लीमेंट योर IoT नॉलेज in these 3 ways. And if you are curious or interested about this course, you can join for this course at your nearest MSCIT center. अभी हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल देखेंगे, उसके बारे में उसके बाद हम एक क्वेश्चन आंसर का सेशन लेंगे. ठीक है, तो अभी आपको मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाती हूँ टिंकरकैड में IoT का. तो यहाँ पे देखो, आपको गूगल में जाना है और टिंकरकैड टाइप करना है. जो फर्स्ट लिंक है वो आपको ओपन करना है. उसके बाद आप यहाँ पे साइन इन करोगे. तो फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन ये वेबसाइट ऑन करते हो तो आपका अकाउंट वहाँ पे नहीं होगा, तो आपको ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके आपका अकाउंट पहले क्रिएट करना पड़ेगा. तो अभी मेरा अकाउंट यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे
साइन इन करती हूँ। तो ऐसी स्क्रीन आएगी साइन इन करने के बाद। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको लेफ्ट साइड में, 3D डिजाइन, सर्किट्स एंड कोड ब्लॉक्स, लेसन्स। तो IoT के लिए हमें जाना है सर्किट्स में, उसके बाद हमें क्लिक करना है क्रिएट न्यू सर्किट्स पे। Internet connection is very important for this. ऐसा एक स्क्रीन आएगा आपके सामने साइन इन करने के बाद। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको। So these are different components which you can use for your practical. So यहाँ पे एक बोर्ड है Arduino Uno R3, we can take this board. इसको सिंपली आपको ड्रैग करना है। यहाँ पे देखो, जो कोर्स में हम बोर्ड पढ़ाते हैं, इट्स नेम इज Arduino Uno एंड ये IC जो आपको दिख रहा है दैट इज इट्स माइक्रो कंट्रोलर IC। तो यहाँ पे एक छोटा सा फर्स्ट असाइनमेंट जो कोर्स में है वो हम सॉल्व करेंगे। कोर्स का असाइनमेंट ये है कि इस बोर्ड में एक इनबिल्ट LED है। यहाँ पे देखो, मैं जूम कर रही हूँ तो आपको यहाँ पे L साइन दिखेगा, ठीक है। जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है वहां पे L लिखा है, दैट इज इट्स इनबिल्ट LED। उस बोर्ड का वो इनबिल्ट LED है और इस LED को हमें क्या करना है, ऑन ऑफ करना है, इसे ग्लो करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, तो अभी इसको हमें प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आपको प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है, प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ब्लॉक प्रोग्रामिंग यूज करके ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो, या फिर कोर्स में जितने भी प्रैक्टिकल्स दिए हैं वो हम ब्लॉक प्रोग्रामिंग के जरिए कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको C प्रोग्रामिंग पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कोड सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे ऊपर कोड लिखा है और यहाँ पे कुछ अलग अलग सेक्शंस है। देखो, आउटपुट सेक्शन है, इनपुट सेक्शन है, नोटेशन है, कंट्रोल है, मैथ है और वेरिएबल है। तो अलग अलग प्रैक्टिकल में ये अलग अलग सेक्शंस का यूज होता है। अभी हम क्या चाहते हैं कि इस बोर्ड का एक LED सिर्फ ऑन ऑफ हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस बोर्ड से आउटपुट ले रहे हैं, इस बोर्ड को हम कुछ इनपुट नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे आउटपुट सेक्शन में और यहाँ पे कुछ अलग अलग ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं आपको। तो इसमें जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है, सेट बिल्ट इन LED टू हाई, ये हमें यहाँ पे ड्रैग करना है लाइक दिस। और इसका मतलब क्या है कि जो बिल्ट इन LED है उसको ऑन करो, हाई मीन्स ऑन। एंड इसके नीचे और एक है ऑप्शन दैट इज लो, कि उसे जब हमें ऑफ करना होगा तो हम लो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। देन अभी हमें क्या करना है, वो LED 1 सेकेंड के लिए ऑन करना है, 1 सेकेंड के लिए ऑफ करना है। तो अभी हम जाएंगे कंट्रोल सेक्शन में, यहाँ पे एक वेट ब्लॉक है जो हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे देखो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, ऐसे कुछ सेटिंग्स है। तो हम जो चाहते हैं कि 1 सेकेंड ऑन रहे तो हम ये सेटिंग ऐसे ही रखेंगे। फिर से हम जाएंगे आउटपुट सेक्शन में, फिर से यही ब्लॉक हम लेंगे, इसे यहाँ पे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे लो। फिर से हम जाएंगे कंट्रोल में और एक वेट ब्लॉक हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मतलब हमारा जो LED है वो ऑन होगा 1 सेकेंड के लिए, देन फिर से ऑफ होगा, फिर से 1 सेकेंड का ड्यूरेशन होगा एंड देन अगेन इट विल ऑन। सो ये लूप में कंटिन्यू चलता रहेगा, ऑन ऑफ, ठीक है। तो ये हमने किया ब्लॉक प्रोग्रामिंग। यहाँ पे आपने कोई कोड एंटर नहीं किया, आप प्रोग्रामिंग नहीं जानते हो फिर भी ब्लॉक प्रोग्रामिंग करके इसको, इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हो। तो अभी हम देखते हैं कि टिंकरकैड ने इसके लिए कौन सा कोड जनरेट किया। तो यहाँ पे जब हम ब्लॉक प्लस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है C++ का कोड।
अगर आप प्रोग्रामिंग जानते थे तो ये कोड आप खुद राइट कर सकते थे, लेकिन फिर भी यूजिंग ब्लॉक प्रोग्रामिंग यही प्रैक्टिकल आप कर सकते हो विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग। बट अगर आप जानते हो तो ये ऐसा कोड आप वहां पे एंटर कर सकते हो। देन अभी हम इसे रन करेंगे। फिर से आपको कोड पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टार्ट सिमुलेशन, जिस पे आपको क्लिक करना है। अभी देखो बोर्ड का जो एलईडी है वो ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। 1 सेकेंड के लिए ऑन हो रहा है, 1 सेकेंड के लिए ऑफ हो रहा है। यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है। इसे हम जूम करते हैं, ठीक है। तो यही प्रैक्टिकल है या फिर ये फर्स्ट असाइनमेंट है कोर्स का कि ऑर्डिनो बोर्ड का एलईडी ऑन ऑफ कैसे करना है। तो ये हमने किया टिंकरकैड में, मतलब ऑनलाइन सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में। यही प्रैक्टिकल आप किट पे एक्चुअली कर सकते हो। इसके अलग अलग प्रैक्टिकल किट्स अवेलेबल होते हैं जो आईओटी कोर्स जहाँ पे भी सिखाया जाएगा वहां पे आपको वो किट मिलेगा जहाँ पे आप ये प्रैक्टिकल एक्चुअली परफॉर्म कर सकते हो ऑन किट। और अगर जैसे कि आप घर पे हो और आपको यही प्रैक्टिकल करके देखना है तो वहां पे आप ऑनलाइन ये प्रैक्टिकल टिंकरकैड में परफॉर्म करके देख सकते हो। सो इस तरह से अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग कंपोनेंट्स यहाँ पे दिए हैं, वो यूज करके इस बोर्ड से कनेक्ट करके हम ऐसे अलग अलग प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करके हमारा सर्किट जो है वो टेस्ट करके देख सकते हैं इन टिंकरकैड। नाउ coming to question answer. So this is all about IoT. If you have any doubt or query, you can ask to me. But this is very helpful or useful course for you. That is Click IoT. Thank you. Thank you, madam. Students can ask questions. Any question Thank you you, can ma'am. ask. Ma'am is live. You can ask questions. Thank you, ma'am. Yes, anybody have any doubt or question? मैडम आई हैव अब वन आप क्वेश्चन। मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हो तो आपके फील्ड में देखो अभी सब जो मशीन्स है, जो व्हीकल्स है, सब ऑटोमेटेड आ रहे हैं मार्केट में। अभी गूगल ने ड्राइवरलेस कार भी बनाया है। तो ये पूरा सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी अभी आपके फील्ड में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है या फिर जो आईओटी प्रोफेशनल्स है, जरूरी नहीं कि कंप्यूटर इंजीनियर्स ही होने चाहिए, क्योंकि वो जो सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी है या फिर वो जो सेंसर है वो किसी व्हीकल में, किसी मशीन में, किसी डिवाइस में जब लगाना है तो आपसे ज्यादा वो नॉलेज किसी अदर इंजीनियर को नहीं होगा। सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी है और मशीनरी में अगर इम्प्लीमेंट करना है तो मैकेनिकल फील्ड का नॉलेज भी वहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कंप्यूटर और आईटी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए ही है। It is also useful for electrical, electronics, mechanical, mechatronics, instrumental engineering also. If you have any query, you can ask to me. Was this session useful? आप चैट मैसेज में चैट करके भी बता सकते हो। आपको आईओटी के बारे में जान के कैसे लगा? आपको लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, यूजफुल है? हाँ, yes, Rohan, ask question. Yes. Ma'am, I have a question that IoT, is it based on AI system? Yes, anybody? Okay, इंटरेस्टिंग है। अगर आपको लगता है इंटरेस्टिंग है, अगर आप क्यूरियस हो, अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो या ऐसे अलग अलग प्रैक्टिकल्स ऑन किट भी परफॉर्म करना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन मैम ये क्वेश्चन है योर नियरेस्ट एमएससीआईटी रोहन का सेंटर जहाँ क्वेश्चन पे है। आपको ये कोर्स सीखने को मिलेगा। मैम वन क्वेश्चन इज देयर फ्रॉम रोहन। हेलो, आप जरूर ये टेक्नोलॉजी के बारे में सीखो, इसका पर्सनल लाइफ में भी आप यूज करो। इसमें अगर आप करियर करना चाहते हो तो आप इसमें करियर भी कर सकते हो। डू यू हैव एनी क्वेरी? मैम वन क्वेश्चन इज देयर। हेलो, कैन वी कंक्लूड द सेशन? प्रवीण सर, मैम आवाज नहीं आ रही आपको? हेलो
Pramod Hello? sir, are you हाँ, there? यस बस ये हमारा आवाज आ रहा है क्या आपको? आपका आवाज आ रहा है? हेलो, आई थिंक मैम इज ओनली You are not audible, madam. हाँ Madam is not audible. हमारा आवाज नहीं ले रही हो. हाँ? We are not heard actually. Madam, you are audible to us, but are we audible to you? हाँ Are we audible to you, madam? Hello. Are we audible to you, madam? Yes, sir. Now. Ma'am, one question was there from Rohan. Rohan asked the question. Rohan, Yes, sir. Yes, sir. you can ask the question. Yes, ask the question. Ma'am, question was that is IoT totally based on AI system? No, आप ऐसे मतलब completely AI based नहीं कह सकते हैं. It's part of sensor based technology, or it includes somewhat electronics also. But AI में इसका यूज या फिर इम्प्लीमेंटेशन है, किया हुआ है. Okay, any more questions? So my question from my side, what is the cost nowadays of the Arduino that you have shown, Arduino circuit over that? Arduino Uno board cost, yes, it costs to 550 rupees. 550. So it is so cheap, huh? It's cheap. Yes. Then I have heard some Raspberry Pi like that. What is that Raspberry Pi? How it is connected with this IoT? Yes, sir. In IoT, that board is also used, but it's used in robotics mostly. It has its own operating system also, and while creating robots or robotic projects, we use Raspberry Pi board. Achha. So is it a mini computer or like that? Yes, sir. Raspberry Pi? Yes, sir. I have heard like that the computers that you have, that's a laptop, you are costing some 25,000. But if you have Yes. got Raspberry Pi, that will cost around 4,000, 5,000. Is it true? Yes, sir. So it is a mini computer for working of robotics. What do you mean? So I Yes, am just confirming it. I am Yes, just sir. I read here and there. Just I am collecting the matter. Now I am just confirming is my knowledge correct or what? Right, sir. It's correct. So our students can that is get some robotics projects out of it. Our students can go to the local industries, find what are the problems and how the problems can be solved with IoT. I'm not getting your question. Our students from our college. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Our students can go to factories, go to nearby industries, work out Yes. what kind of problems they have regarding, say, the vibration problem, regarding the temperature problem, regarding the Yes. humidity problem. See, any kind of problem, controlling Yes, problem. So these problems, with the help of IoT, they could build a project out of it. What I feel. Yes, sir. And If again, they know, if they have knowledge of sensors, different communication technologies, and Arduino board, and various other boards also, they can solve these problems while working. and new world that is of robotics that is open to you due to the IoT now with the help of Raspberry Pi. If the device they have got and if they get a mastery over it, they can have robots. They can enter into the field of robots. What I feel. Yes, sir. For that, they should know the knowledge of Raspberry Pi and all related technology. And we have another course in that same field, for that same field, that is Click Robotics. In robotics course, we give all that knowledge which you are telling me. So we are launching that course also in coming April, May. That is Click Robotics. No, these are what I think. These are the two important applications of this IoT in mechanical engineering. Is Yes, the sir. Yes. industry based, then robotics, then Yes. again
in the air conditioning. So wherever in the industries or big conferences halls and auditoriums where the temperature and humidity controls are necessary, therein again this IoT could be advantageous. What I feel, if students do Yes. project of that kind, because it is a Yes. sensor based. What you have to do is a sensor based technology. Yes, sir. You can Because, automate the environment also using sensors. environment, You can control that temperature. temperature, humidity, vibrations, every whatever we Yes. can sense, we can control over this. Yes, sir. Sorry. Okay, so shall I conclude the program by vote of thanks? Yes, sure. Okay. So I Thanks. thank our principal, Dr. J.J. Khan sir, for permitting us to take webinars. I also thank our HOD, Dr. Praveen Purduke sir, for always guiding us and motivating us to learn new things. So thank you very much, sir. And thank you, Meera ma'am, for giving very minute and detailed information about IoT. I think our students really come to know how IoT works. I also thank our faculty members for joining this webinar, and last but not least, our students who wholeheartedly joined this webinar. Thank you very much. I have posted a link in the chat box for feedback, and also once you click the feedback, you give the feedback, you'll get a certificate. So don't forget to give feedback so that you can get the attendance certificate. Thank you very much, and I conclude the session, and I will end the session. So thank you very much. Okay, Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you, madam. Chalo, good program. Okay. Congratulations all, Pramod. Yes, It was a simplest. What I can say? Yeah. Simple, simpler, simplest of all kinds. What is IoT? In very simple terms. Yes, sir. That too in mother tongue also.